We have with us today Dr. Sachin Ladda, Principal, PV Polytechnic, who also served as the Director, Innovation, Incubation and Linkages at the University of Mumbai, where he led initiatives aimed at fostering entrepreneurial culture and strengthening startup ecosystems. With more than 20 years of academic leadership in pharmaceutical sciences, research mentoring, and institutional innovation, he brings extensive experience to the implementation of national innovation and startup policy. A recognized startup coach and an angel investor, Dr. Ladda has successfully spearheaded incubator collaborations, including a strategic partnership between MU Idea Foundation and 100X VC to support student and university-led startups. His work also includes guiding faculty and students in innovation, quality framework, and incubation strategies. Dr. Ladda has deep experience in accreditation, NAC, quality assurance, curriculum development. His leadership enriches the academic ecosystem with best practices in technology transfer, startup mentoring, and policy alignment. His area of expertise are national innovation and startup policy implementation, startup incubation and accelerator partnership, innovation ecosystem strategy and mentoring, higher education quality and accreditation, research industry collaboration and institutional linkages. I welcome our principal, Dr. Sachin Ladda sir, to take over the session. In the inaugural session, my role is to let you know how to gain money, my dear honey. Okay? So as you know that IPR, patent and patent related activities, you know how to file the patent, what is the importance. But, my dear friends, I just want to share you one thing, being an academic personnel, we are not aware that much as far as its commercial value is concerned. Okay? So from couple of years, through different missions, academicians are encouraging to file patents. जिस वजह से आपने देखा होगा, lots of patents. We are actually increasing our state from ranking as far as patent and related ranking is concerned. Last 2 से 3 साल में आपने देखा होगा, lots of upliftment is there. ठीक है? I too have 10 Indian patents to my credit. Portions हुआ आपका? So as we know that last time inaugural session only, the assistant patent controller told you that this is the only property where nobody can claim. कोई भी नहीं कर पाता है. ठीक है? So in order to get it converted into technology transfer, in order to get it converted into what we say revenue generation type of models, there is one policy called National Innovation and Startup Policy. अब बात आती है कि इसका genesis, इसकी जरूरत क्या है, right? So days and so on. मतलब बहुत सारा social based aspect के बारे में बात की है. But at the same time, as you know, lots of private universities are coming, and at the same time, international universities are coming into the Indian market. So in that case, nowadays, education is supposed to be a service providing institution, और in other sense, एक ऐसा institute जो service base पे बात करे, right? And at the same time, whenever you are talking about service base, student will be your client. No, not at all. Student is your product, and parent is the client, right? They are paying fees to you, and against that, what you are giving? That's the question, right? As you know that कि कोई problem मेरे mobile में हो जाता तो I used to call to service center. 10 गाली देने के बाद भी you will get to know कि वो person या lady बड़ा politely बोलते sorry आपको inconvenience हुआ and so on. ठीक है? So that sort of quality of services is nowadays expecting from educational institutions. ठीक है? अब जमाना जा चुका है. मेरे हिसाब से असिस्टेंट रजिस्ट्रार साहब, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑलरेडी यहाँ बैठे हैं. ठीक है? वो मेरे से बिल्कुल एग्री हो गए कि nowadays गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का बड़ा स्ट्रॉन्ग फाइट चल रहा है. ठीक है?
और हम मतलब मैं थोड़ा सा डोंट टेक इट अदरवाइज, ठीक है। सो जहां पर एक तरफ अगर इसमें से कोई प्राइवेट एंटिटी वाले होंगे, सो दैट इज द प्लस पॉइंट फॉर यू, एंड फॉर द गवर्नमेंट वन लिटिल बिट नेगेटिव पॉइंट कि हम अभी भी हमारे प्रॉब्लम्स पे ही बात करते हैं। मेरे पास ये प्रॉब्लम है, वो है, यहाँ है, क्या है। सो आई स्पेंड अराउंड 3.5 years away from S&T Tube Institute, and that's in the startup ecosystem. I get to know that, मेरे को अच्छे से याद है, असिस्टेंट डायरेक्टर साहब बोलो या और कोई रहो, या इवन इंक्लूडिंग मी, और मेरे में से कोई प्रिंसिपल होंगे, उनको भी पता है, our day started with problem and end up with problem only. कोई कंस्ट्रक्टिव काम किया या नहीं किया वो आखिर तक समझ में नहीं आता है, बट समझ आ रहा है, राइट? So my conversation with my own faculty, I always used to say, भाई टकली गिर रही है, इतने प्रॉब्लम्स मत बताओ, ठीक है। But after spending 3.5 years in the startup ecosystem, I get to know your problem is your best friend. It's your way to make it friend, and that friend will give you ample type of either monetary gain or non-monetary gain, ठीक है। So that entrepreneurship play an important role. मेरे अपने फैकल्टी को अगर छोड़ दूं मैं, so those who are other than my faculty, मेरी बड़ी लाइफ प्यारी है पीवी पॉलिटेक्निक में, ठीक है। करीब 150 के करीब स्टाफ है, 1300 लड़कियां, 27 कोर्सेस, और छोटा मोटा डॉन बोल सकते हो मेरे को, बेल मार दी कि चाय भी मिल जाता है, नाश्ता भी मिल जाता है। बहुत बार मैं मेरे फैकल्टी को बोलता हूं ये सब मिलके गड़बड़ कर रहे हैं, सर आप उठो मत, सिर्फ साइन करने का काम करो, ठीक है। इट लुक्स लाइक टू दैट, so having that type of comfort life, सोलापुर एज अ डायरेक्टर इन्क्युबेशन इनोव्हेशन गया, 200 स्टाफ से सर 150 स्टाफ होते माझ्याकडे इथे विजिटिंग आणि हे सर्व पकडो। सो आई विल लेट यू नो, मैं अकेला था 3 महीने तक, उसके बाद 2 महीने के बाद 2 फैकल्टी आई नॉन टीचिंग, और एंटायर शो 4 फैकल्टी से सोलापुर में रन किया, और यहां पर एक पूरा साल मैं अकेला रन शो कर रहा था, राइट? डोंट यू फील इफ यू आर अवे फ्रॉम योर कंफर्ट जोन, आप अगर अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हो, देन ओनली यू विल गेट टू नो व्हाट्स योर पोटेंशियल, ठीक है। और एट द सेम टाइम दैट एक्चुअली प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द अपब्रिंगिंग ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ, आई मस्ट से, ठीक है। अब मुझे प्रॉब्लम्स जो है वो तकलीफ नहीं देती है, ठीक है। अब दैट्स डिफरेंट स्टोरी कि कर भी कुछ नहीं सकता हूं मैं दैट्स अनदर, बीइंग अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय कुछ कर नहीं सकता हूं, सिर्फ हल्का सा स्माइल देना होता है, एंड एट द सेम टाइम पॉसिबल सॉल्यूशंस की तरफ बात करनी होती है, राइट? सो माय डियर फ्रेंड्स, दैट्स द सिचुएशंस वेयर इनोवेशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, राइट? सो मैंने बताया था आपको कि प्रॉब्लम प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, प्रॉब्लम्स आप फ्रेंड बनाते हो, सो यू कंसीडर दैट प्रॉब्लम, उसमें जो सॉल्यूशन दिया जाएगा, इन अदर लैंग्वेज वी कॉल इट द इनोवेशन, ठीक है। सो इनोवेशंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, वी आर इनोवेटर, बट एट द सेम टाइम वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ दैट इनोवेशन, राइट? आप में से इंक्लूडिंग मी टू कुछ इनोवेशंस करते हैं, बट उसका कमर्शियलाइजेशन के बारे में हम क्या बोलते हैं, इट्स नन ऑफ माय बिजनेस, या मेरा वो एक्सपर्टाइज नहीं है, राइट? इंक्लूडिंग अ पर्सन लाइक मी टू हु बिलोंगिंग टू बिजनेस कम्युनिटी, और वो भी उसी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं कि नहीं यार ये मेरा कप ऑफ टी नहीं है, राइट? So in order to correct that attitude, there is one policy actually meant or actually developed for AICT institute only. AICT के institute के लिए उस policy को लिया गया था, ठीक है? So based on the success of that AICT based policy, later on Ministry of Education, at that time it was MHRD, Ministry of Human Resource and Development. Under that MHRD, there is one cell called MHRD Innovation Cell. ठीक है? So under that, they initiate one policy under the able leadership of Professor Jhunjhunwala. ठीक है? I must say I am fortunate enough. I actually represent S&T Women's University during the visit to IIT Science and Technology Park, Madras. Madras के उस पार्क में यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू हम 2 पर्सन थे जिन्होंने रिप्रेजेंट किया था, एट दैट टाइम आई गॉट अ चांस टू डिस्कस एंटरप्रेन्योरशिप related importance way back in 2017, somewhere around 16 or 17. So I got to interact with Professor Jhunjhunwala. He's a crazy guy, I must say.
ठीक है? At the same time, in the innovation ecosystem, in the entrepreneurship ecosystem, or in the startup ecosystem, whatsoever magical or the situations that you people are finding out at national level, most of the credit goes to that fellow only. So under his leadership, the National Innovation and Startup Policy for Faculty and Staff came into existence. ठीक है? आज अगला 10-15 मिनट मैं एनआईएसपी पॉलिसी के बारे में बात करूंगा. आई मस्ट से कि विनोद सर ने गिरव सर ने ऑलरेडी वो एनआईएसपी पॉलिसी आपको 42-45 पेज का पॉलिसी आपको सर्कुलेट कर चुके होंगे. ठीक है? सो आई जस्ट चेक इट आउट कि उसके कुछ क्रिस्पी पॉइंट्स मैं आपके सामने प्रेजेंट करूं, एंड एट द सेम टाइम मोर यू क्वेश्चन, मैं उतना ज्यादा आंसर देने का प्रयास कर रहा हूं, बिकॉज 3.5 साल पहले मैं भी आप में से एक था. और वहां से बाहर निकलने के बाद थोड़ी बहुत दुनिया जो देखी है उसके अगेंस्ट में आपके सवालों का जवाब देने का प्रयास करूंगा. ठीक है? नहीं, वो मेरा एक रूटीन स्टाइल है, डिस्कशन ऐसा होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए. दैट्स द रीजन. ठीक है? सो बेसिकली as I told you that policies are actually implemented through Ministry of Education, Government of India, under the leadership of UGC as well as AICTE. So September 11, 2019 is the date where the National Innovation and Startup Policy for Faculty and Staff has been came into existence. ठीक है? आपने से देखा होगा कि बहुत बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे टीचर्स ट्यूशन ले लेते हैं. ठीक है? और कुछ चोरी छुपे लेते हैं. You know, that can be legalized if you are able to convert that thought into innovative thought. अब आप बोलोगे कि ट्यूशन लेने में क्या इनोवेशन दिखाएंगे? Just best example is Unacademy. Check it out. Unacademy looks like to that only, right? So what was its innovation? In Unacademy, a person who is actually doing a study for MPS and UPSC at Pune or somewhere other thing, 30,000 के करीब का खर्चा निकालता है. What was their way? Student just ask question और उसको आंसर देने वाले आप जैसे फैकल्टी होते हैं. वो आंसर देना है आपको और उसके अगेंस्ट में यू विल गेट सर्टेन अमाउंट. दैट्स द मॉडल ऑफ अनअकैडमी, राइट? एक हिसाब से मेंटरिंग ही हुआ ना, एक हिसाब से ट्यूशनिंग ही हुआ. बाइजू इज अनदर एग्जांपल. ठीक है? सो द थिंग इज दैट एज फार एज इनोवेशन इज कंसर्न, मैक्स ऑफ द टाइम्स वी पीपल फील कि नया प्रोडक्ट आता है मतलब इनोवेशन. नो माय डियर फ्रेंड्स, एब्सोल्युटली नॉट. इनोवेशन की अगर हम बात करते हैं इन द स्टार्टअप इकोसिस्टम अंडर एनआईएसपी की भी अगर हम बात करते हैं, व्हाट वाज इनोवेशन एक्चुअली? इनोवेशन इज नथिंग बट you just ask one question to yourself: is there innovation, product based innovations I am having? The second one, business based innovations I am having, and then third one is process based innovations do I have? तीनों में से किसी एक का आंसर yes होता है तो you comes under that NISP policy. And through that NISP policy, I must say, nobody can stop you to start your own startup, including your principal. यहां से बात कर रहा हूं मैं आपसे, right? So the thing is that the only concern is that policy get it passed from the university, right? Based on this NISP policy, Maharashtra government drafted one policy called Maharashtra Startup Policy, right? So my dear friends, as you know, for teacher community, for academic community, entrepreneurship is a small part. बहुत सारी चीजें हैं. Being a principal, मेरी अगर बात करोगे तो क्या होगा? 10 काम है, 10 में से एक एंटरप्रेन्योरशिप घुसा दिया है. 9 अलग अलग कामों पे मैं काम कर दूं, 90 मार्क्स तो वैसे भी मिल रहे हैं. 100 किसको चाहिए भाई? तो 10 साइड में कर दो. ठीक है? सो द थिंग इज दैट वन जो साइड में करने वाला बात किया था, जो एंटरप्रेन्योरशिप की बात किया था, इन ऑर्डर टू मेक इट प्रायोरिटाइज, द पॉलिसी केम इनटू एग्जिस्टेंस कॉल्ड नेशनल इनोवेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी. अब जब मैं सोलापुर था उस पीरियड में एनआईएसपी पॉलिसी पास मैंने क्यों किया? That was the question. Obviously, ये entrepreneurship domain होने की वजह से करना ही था. But एक important चीज थी जो मेरे को actually drive की in order to present that policy in front of the academic council as well as management council. What was that policy? That policy told you 1% of your total budget should be allocated for innovation and startup. ठीक है? अब जब बात आती है यूनिवर्सिटी में, अब में से कुछ लोग हैं जस्टिफाइड हो गए मेरे से कि पैसा बॉस से मांगना बड़ा डिफिकल्ट है, ये सब
मेरे अपने प्लेयर तो बड़े क्लियर है कि वैसे ही छोड़ता नहीं है सचिन सर, अब वो कहाँ देगा पैसा. It looks like to that being administrator हमारे से पैसा छूटता नहीं है, right? So the same thing happened at the position of director innovation incubation and linkages for me too. कि मेरे पास भी पैसा आ नहीं रहा था. They simply say you just call the fund from Maharashtra State Innovation Society or try for some other grants and so on. So one fine day I got this policy NISP in my laptop. मैं बहुत पहले कर चुका था, right? So over there an important line I find 1% of your total budget should be allocated for innovation and incubation related thing. वही पॉलिसी के सामने जब मैं सामने गया, it's a mandatory policy because it is approved by UGC, right? वो पॉलिसी जब रखी थी ना, तब कहीं पर भी दूर दूर तक मैंने 1% के बारे में बताया नहीं गया था. मैं झूठ नहीं बोला, बट सच भी नहीं बताया. ठीक है? So in that fashion, NISP पॉलिसी सोलापुर में पास होने के बाद I got huge amount of money in my pocket. मैं बड़ा ज्ञान दे दूं आपको कि स्टार्टअप करो. From where the money is coming, yaar, right? And at the same time, if you ask me, be competitive. It is not a research project. कोई research project नहीं है, right? So somebody is investing on you, either government or some private player too, right? So easy going में मैं अगर बोलूं कि ये इस ढंग से चलता है, एंटरप्रेन्योरशिप इधर चलती है और एकेडमिक इधर चलता है, इन दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना है, तो सम अमाउंट ऑफ मनी शुड बी देयर इन माय पॉकेट, राइट? एंड NISP पॉलिसी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल. मुंबई यूनिवर्सिटी, सोलापुर यूनिवर्सिटी, औरंगाबाद यूनिवर्सिटी, SRTM नांदेड़ यूनिवर्सिटी, ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटी ने NISP पॉलिसी ऑलरेडी पास कर चुकी है. हमारी यूनिवर्सिटी का स्टेटस इन प्रोसेस है, शायद इन प्रोसेस है, ठीक है? सो दैट्स द वे. अब मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको, बताऊं सर? आपने लेक्चर तो बहुत प्यारा दिया, अच्छा भी लगा, पैसे के बारे में बात करो, राइट? सो दैट मनी इज कमिंग फ्रॉम दिस NISP पॉलिसी ओनली, राइट? सो ये भी फास्ट भाग रहा है कि मैं फास्ट भाग गया, पता नहीं है, ठीक है, राइट? एज फार एज विजन एंड गोल्स इज कंसर्न्स, foster a cultural of innovation and entrepreneurship within academic institution, encourage student and faculty to engage in startup activity, build a robust innovation ecosystem, promote collaboration between academia and industry. राइट? अब ये तो आपका लैंग्वेज हुआ पॉलिसी वाला. आप मुझे अगर पूछो ना, I told you कि nowadays educational institute should consider under industry category, ठीक है? और industry category की बात करते हैं तो client play an important role. आज के डेट में in the era of AI, ChatGPT, number of jobs जा रहे हैं, ठीक है? बहुत सारे जॉब जा रहे हैं. तो ऐसे केस में being academic institutions, I should have another options in my pocket. ठीक है? तो अनदर ऑप्शंस क्या हो सकता है? तो उसमें से एक ऑप्शन से जॉब नहीं है तो क्या है दूसरा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन से एंटरप्रेन्योरशिप. उस एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप बहुत बड़ा चीज है. सो इन ऑर्डर टू हैव डिफरेंट स्टेक होल्डर एट वन प्लेटफॉर्म, इस वजह से एकेडमिक इंडस्ट्री लिंकेजेस की बात कर रहे हैं, राइट? आज के डेट में जब MOU रिलेटेड मुंबई यूनिवर्सिटी में मैंने बात कर रहा था मेरे अंडर आने की वजह से, सो एट दैट टाइम आई फाउंड दैट कि मैं इंडस्ट्री मेरे साथ क्यों जुड़े. गुड क्वेश्चन, राइट? आप सोसाइटल काम कर रहे हो, इंडस्ट्री कमर्शियल काम कर रहे हैं, उन्होंने क्यों जुड़ना चाहिए? द थॉट इज, आप इंटर्नशिप बोलोगे, ठीक है, एक पॉइंट हो गया. रिलायंस को कोई फर्क नहीं पड़ता इंटर्नशिप का अगर हम बात करते हैं. दूसरा पॉइंट प्लेसमेंट तो वैसे भी आप नहीं कोई और सही, ठीक है? सो आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स देने होंगे सो दैट द इंडस्ट्री विल अट्रैक्ट योरसेल्फ, आपकी तरफ आ सके. So the thing is that I put one point in front of that industry, XYZ, नाम नहीं बताऊंगा मैं. So I simply say, sir, you people are having problem in your business. Just have ideathon on that problem. I will let you know. I will help you out. The thing is that आपको ideathon run करते वक्त करना क्या है? 10,000, 7,500 और 5,000, that was the prize money that I put from my pocket. बराबर? तो उस एंगल से उनके प्रॉब्लम पे सॉल्यूशन दिया जा सकता है. सेम थिंग इज हैपेंड एट सोलापुर यूनिवर्सिटी टू. टेक्सटाइल हब है, आप देख रहे होगे तो. एट द सेम टाइम पानी की बड़ी कमतरता है, राइट? सो बट द थिंग, टेक्सटाइल में मैक्स ऑफ द वाटर इज कंज्यूमिंग इन टेक्सटाइल इंजीनियरिंग. रिसाइकलिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स पे हमने आइडियाथॉन रन की थी, राइट? वी गॉट एक्सेलेंट रिजल्ट. एट द सेम टाइम I used to tell that industry people कि सर मेरे से कई गुना अनयूज्ड ब्रेन मेरे स्टूडेंट का है, वो क्या सोच सकते हैं वो मैं भी नहीं सोच पा रहा हूं, ठीक है?
So in that fashion, industry academia linkages के बारे में बात हो रही थी. So this NISP policy actually help you out to have good relationship with industry. ठीक है. अभी आपने देखा होगा M.Pharm, M.Tech या मास्टर डिग्री के कोई भी प्रोजेक्ट होते हैं. ठीक है. मैं आपकी बात नहीं करूं, मैं मेरी बात करूं. आप लोग प्रॉपर किए होंगे, बट मेरी बात अगर को आई डिड M.Pharm इन केमिस्ट्री और मेरा प्रोजेक्ट किस बेसिस पे बनाया पता है आपको? आई सिंपली डू द प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन द केमिकल अवेलेबल इन माय लेबोरेटरी. ठीक है. पहले क्या किया, केमिकल कौन से अवेलेबल है देख लिया, वो दोनों केमिकल को ज्वाइन करने के बाद क्या बन सकता है वो प्रोजेक्ट किया, और वो बना हुआ किस टाइप की एक्टिविटी दिखा सकता है वो हिसाब से सोचा, और देन फिर एंटायर थिंग हुई. डोंट यू फील, मेरे हिसाब से भित्रे सर मेरे से कन्विंस हो गए, मैक्स ऑफ द प्रोजेक्ट दैट आर कमिंग फ्रॉम स्टूडेंट और सच टाइप ऑफ डिग्री, दे आर जस्ट एकेडमिक प्रोजेक्ट. उसका वैल्यू नहीं के बराबर है, एक्सेप्ट आईआईटी और यूआईसीटी, इनको छोड़ दे दो. इवन अभी आपका ये भी आ गया, आईसर पुणे भी आ गया, राइट. सो दिस एनआईएसपी पॉलिसी एक्चुअली हेल्प यू आउट. अब बात आती है कोई भी रहे, ठीक है, कि हमारे लिए बीइंग अ टीचर, अगर आप गौर करोगे बहुत सारे काम है, जैसे प्रिंसिपल के पास काम है वैसे टीचर के पास भी बहुत सारे काम है. उनमें एक टास्क दे रखा है स्टार्टअप वाला, तो यार वो ओवरबर्डेड हुआ. बट वहां इंसेंटिव दिया जाए, वहां अगर हल्का फुल्का क्यों ना हो रिवॉर्ड्स दिया जाए, डोंट यू फील आप दौड़ते हुए चले आओगे? इट लुक्स लाइक टू दैट, एंड दैट एनआईएसपी पॉलिसी हैविंग दैट कंटेन और दैट टाइप ऑफ रिवॉर्ड्स इन द पॉलिसी. ठीक है. So this is the key component: institutional strategy and governance, developing policy. As usual, I already told. Sorry. Beneficial to startup ecosystem. That's the simple answer. ठीक है. So if you ask कि मैं इंडस्ट्री के लिए काम किया तो इंस्टीट्यूट को क्या मिलेगा, that can be your question. In that case, I must say, if you are using the facility of the institute, 2 to 9.5% stake should go to the institute through special purpose vehicle. मतलब वो कंपनी का ओनरशिप हुआ नहीं डायरेक्ट वे से, एंड एट द सेम टाइम आप जो काम कर रहे हो, up to 20% is the stake percentage that is allowed through this NISP policy. Right. And at the same time, if you want to do full time up to 3 months, nobody can ask you any type of questions. If you are on managerial role of the startup, and after 3 years, go for sabbatical leave, go for earn leave, and so on. So during that particular tenure, आपका जो seniority है, nobody can question on you. Right. That's one thing. And then at the same time, you know, through this NISP policy, nowadays you might heard a position called professor of practice. Okay, what that professor of practice is actually the person who are there in the industry, they are serving the student community, right? So in that fashion, in that way, your profile will be more stronger. If you ask me, I am pharmacy researcher, academician, skill development, and at the same time startup mentor. इस टाइप के combinations में, you just check it out, Google it, how many faculties are there in the market. होगे, नहीं होगे ऐसी बात नहीं करो, but number is very few. और अगर वो number कम है, तो आप by default दिख जाओगे ना यार. तुरंत ध्यान में आएगा, अरे यार ये जैसे I got one a cute remark from Solapur startup ecosystem. अरे ये वही लड्डा सर, स्टार्टअप वाले लड्डा सर है क्या? स्टार्टअप वाले लड्डा सर का स्टेटमेंट दिया उन्होंने. दैट वाज एक्चुअली द रिवॉर्ड्स, मेरे लिए वो रिवॉर्ड्स था. ठीक है. सो सेम थिंग कैन हैपन विद यू पीपल टू. ठीक है. आई मस्ट से, ऑल्दो कमिंग फ्रॉम बिजनेस कम्युनिटी, वो थोड़ा कैरेक्टर आने की वजह से कुछ नहीं कर सकते. व्हेन आई प्रेजेंट माय प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ द सोलापुर यूनिवर्सिटी अथॉरिटी, आई यूज्ड टू से आई एम एजुप्रेन्योर, आई एम नॉट एकेडमिशियन. मैंने एकेडमिशियन बोला ही नहीं. I simply say entrepreneur. So how can I prove that particular thing? Having 10 courses to 27 courses, 650 students to 1300 students. At that time, some people in and around me, they told, government officer हो यार, इतना करने की क्या जरूरत है? But I get to know, I'm more concentrate, more focused on non-monetary gain rather than monetary, right? So during that particular thing, I must say, Polytechnic
प्रोफेसर या पॉलिटेक्निक टीचर को यूनिवर्सिटी इकोसिस्टम इतने आसानी से अडॉप्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? नहीं, हम तो हायर एजुकेशन वाले हैं, बट अ पर्सन लाइक मी हु इज शोइंग द इंटेंशन ऑफ a different type of things, directly get selected as a director innovation incubation linkages, right? So that is just because कि आप किस वे से उस चीज को लेके जाते हो, ठीक है? So I must say NISP पॉलिसी आपको बहुत सपोर्ट करेगा। हाँ, so मैम आई होप पॉइंट क्लियर हुआ आपका, ठीक है? Then बहुत आगे चले गए कि हाँ, क्रिएटिंग इनोवेशन पाइपलाइंस, वन मोर टाइम, आप जो भी रिसर्च करते हो दैट शुड बी एड्रेस टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम को एड्रेस करने वाला रिसर्च होना चाहिए, सो दैट आपका टाइम भी एनकैश होगा, एट द सेम टाइम यू गेट सर्टेन मॉनिटरी बेनिफिट, एंड एट द सेम टाइम इंस्टीट्यूट विल गेट गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है? हम हमारे इसमें भी बात करते हैं। आई मस्ट से एट पीवी पॉलिटेक्निक वी ऑलवेज फील, हम हमेशा सोचते हैं, अभी ये भी महामेरू का प्रोजेक्ट है ना, ये पीएम उषा मेरू, वैसे देखा हायर एजुकेशन वर्ड है, बट हु इज कंडक्टिंग? पीवी पॉलिटेक्निक इज कंडक्टिंग, ठीक है? व्हाई? थॉट इज वेरी सिंपल, वी आर अर्निंग सैलरी रादर देन गेटिंग सैलरी। गेटिंग वाली कैटेगरी में नहीं है, सरकारी दवाई की बात नहीं, 100% नहीं है, ठीक है? सो दैट एक्चुअली हेल्प यू आउट क्रिएटिंग इनोवेशन पाइपलाइंस, जो भी आपके पास रिसोर्सेस है, राइट? उन चीजों को एक प्लेटफॉर्म पे लाके दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ गुड नंबर ऑफ स्टार्टअप्स, आराम से कर सकते हो। देन कैपेसिटी बिल्डिंग, आज के डेट में आई मस्ट से 360 डिग्री का एक फॉर्म आया है एआईसीटी का, ठीक है? और एआईसीटी का 360 का जब आप फॉर्म भरोगे ना, लॉट्स ऑफ थिंग्स अदर देन एजुकेशन, अदर देन टीचिंग, दे आस्क, राइट? मैं आई मस्ट से कि एक आधा भी स्टार्टअप आपने मेंटर किया और वो फ्लरिश हो गया ना, you will get more marks than me, मेरे से भी ज्यादा मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है? that's the thing, ऊपर से परकुलेट हो रहा है। तो उस केस में आज न कल हम उस फ्लो में आने ही वाले हैं, आना ही पड़ने वाला है। इससे बेटर है कि हंसते हुए मैं ही खुद आ जाऊं ना यार। दैट वाज द सिंपल थॉट, ठीक है? सो देन कैपेसिटी बिल्डिंग की अगर हम बात करते हैं, यू नो रिसेंटली यूनिवर्सिटी ऑफ एसएनडीटी वुमेन्स यूनिवर्सिटी हैविंग वन एफडीपी इन एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू वाधवानी फाउंडेशन, मेरे कुछ फैकल्टी ने किया है उसमें से, ठीक है? सो थ्रू दैट पर्टिकुलर फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, इवन थ्रू NITR, NITTR, वी रन दैट FDP फॉर आवर फैकल्टी टू, ठीक है? सो उस वे से भी कैपेसिटी बिल्डिंग्स पॉसिबल है। DSC इज हैविंग 6 to 9 नंबर ऑफ फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम फंडेड बाय देम विथ 3 लाख रुपीज ईच। इस टाइप का इकोसिस्टम क्रिएट हो रहा है। अल्टीमेट सेंटर पॉइंट क्या है पता है क्या? स्टूडेंट के पास जॉब नहीं है तो दूसरे ऑप्शन की तलाश में NISP चल रहा है, ठीक है? अब स्टूडेंट के पास जॉब नहीं है, उसमें हम मल्टीपल इंक्लूडिंग मी टू वन ऑफ द स्टेक होल्डर है जिसपे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है, राइट? ऐसा है कि 100% जॉब गए? नहीं, 100% जॉब नहीं गए, कुछ जॉब है, तो वो कुछ जॉब में मेरे स्टूडेंट क्यों नहीं है? दैट कैन बी ए क्वेश्चनेबल थिंग, ठीक है? तो मैं भी NISP के थ्रू एक नया एवेन्यू जनरेट करने का प्रयास करूंगा, ठीक है? सो दैट हेल्प अस एक्चुअली। द नेक्स्ट टू दैट कोलैबोरेशन, को-क्रिएशन। सो इसके अंदर जैसे हमने बात की है कि इंडस्ट्रीज हैविंग सर्टेन प्रॉब्लम, दे डोंट हैव टाइम, वी आर हैविंग ब्रेन इन आवर इंस्टीट्यूट, सो लेट्स हैव दैट पर्टिकुलर थिंग। आई थिंक फूड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट वी आर हैविंग, क्या बनाया था सर? फूड टेक्नोलॉजी वाले ने वो एक एडिबल फिल्म एक बनाई, और दूसरा एक वो ये किया था ना, शायद नहीं चॉकलेट नहीं, वो ये मिल्क शेक का क्या बनाया था? मिल्क शेक क्यूब्स, ठीक है? अब बताओ, मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरे पास ड्यूरिंग माय सेशन एज ए स्टार्टअप मंथन, मेरे को एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर आई बिलोंग्स टू नॉन साइंस बैकग्राउंड, ठीक है? और हमने सुना है कि स्टार्टअप सिर्फ टेक्नोलॉजी और साइंस वाले करते हैं। नो, नॉट एट ऑल, 100% नहीं, 100% नहीं है, ठीक है? और एट द सेम टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल फील कि बैचलर और मास्टर डिग्री वाले इनोवेशन नहीं, बिल्कुल नहीं है। इवन 12th फेल वाला भी इनोवेशन करता है, ठीक है? इनोवेशन इज नोबडीज मोनोपोली। मैं अगर बोलूं कि साइंस वाले की मोनोपोली नहीं, मैं अगर बोलूं ग्रेजुएट नहीं, कोई किसी का नहीं है। इनोवेशन इज इनोवेशन, सिंपल इनोवेशन, ठीक है? मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी एक्चुअली लव नासा टाइप ऑफ इनोवेशन। माय डियर फ्रेंड, आई मस्ट से कुछ नहीं है, सब ज्ञानबाजी है। उसका फ्रूट कब आने वाला मुझे नहीं पता, लेकिन ग्रास रूट इनोवेशन
से फॉर एग्जांपल नाइफ की अगर हम बात करते हैं, या बहुत ज्यादा दूर की बात नहीं करें, हेलमेट पहनने की बात करें, मेरे थोड़े बहुत बाल हेलमेट पहनने की वजह से गए हैं, कैन वी हैव द सॉल्यूशन ऑन दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम? कि उसमें से आपने देखा होगा कुछ अलग अलग टाइप के हेलमेट्स मार्केट में आए हैं, राइट, जो कूलिंग इफेक्ट दिखाता है, राइट, या और कोई बाहर से एयर, इवन नंबर थिंग्स, इवन if you love actually design product design related thing, go to IIT मुंबई, वहां पर चक्रवर्ती साहब है, हम प्रयास करेंगे आने वाले समय पे उनको बुलाने का. So he is actually the one of the contributor for जयपुर फूड का जो कंट्रीब्यूटर है वो है. इवन मैं उनकी जब डिजाइन लैब देखी थी, लॉट्स ऑफ इनोवेशंस हैपेंड, राइट. बहुत ज्यादा दूर मत जाओ यार, वो आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी ना. 3 इडियट मूवी में इनोवेशन करने वाले तो बच्चे ही थे ना, जो मेरे से कई गुना कम एज था, राइट. सो दैट इज समवॉट, उनको रिवॉर्ड देने का काम, इस टाइप के इनोवेशन को रिवॉर्ड देने का काम इस पॉलिसी करेगी एनआईएसपी. देन वही इंसेंटिव स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी. आज के डेट में इफ यू आस्क इफ योर यूनिवर्सिटी approve that NISP policy, in that case student can work on a particular problem or a particular startup related project, and against that he or she will get credit for that particular activity. That's point number 1. Point number 2, he or she can take 6-month break. So next time पे जब वो academic में आएगी या आएगा, you have to give him or her admission to that particular thing. ठीक है. Third thing, even faculty can mentor such type of students, right. जब उनको क्रेडिट मिल रहा है तो इनको वर्कलोड भी मिल रहा है ना. It looks like to that. ठीक है. So that is somewhat the incentives student and faculty, ये जो points उसमें mention किया गया है, that comes under that particular thing. The next one, incubation support. You know, आपने सुना होगा SNDT Women's University के पास incubation center है called WISE. ठीक है. SPIT सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास उनका TBI है, VJTI के पास और एक इंक्यूबेशन सेंटर है, मुंबई यूनिवर्सिटी के पास यम्यू आइडियाज है, सोलापुर वाले के पास उद्यम इंक्यूबेशन सेंटर. इंक्यूबेशन सेंटर क्या कंसेप्ट है आप लोगों को मालूम होगा, तो भी मेरे स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए मैं बताऊं, बिकॉज दिस एक्चुअली सेशन इज हैपनिंग इन एसोसिएशन विद इंस्टीट्यूट इनोवेशन काउंसिल, तो वो भी मेरे क्लाइंट हुए हैं. ठीक है. उस एंगल से अगर हम बात करते हैं तो आई मस्ट से दैट इंक्यूबेशन सेंटर इज नथिंग बट छोटा मोटा डीमार्ट ऑफ स्टार्टअप का एक डिमार्ट. जैसे आप स्टार्टअप में चले जाते हैं, डिमार्ट में चले जाते हो, क्या होता है, एक अम्ब्रेला में सब सर्विसेज लेते हो. सेम थिंग इज हैपन इन केस ऑफ इंक्यूबेशन सेंटर. स्टार्टअप को लगने आइडिया कौन सुनेगा, आइडिया पे वैलिडेशन कौन करेगा, आइडिया को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए मेंटरशिप, उसके बाद स्केल अप करने के लिए, उसके बाद फंडिंग, स्केल अप फंडिंग, लीगल सपोर्ट, ये कोवर्किंग स्पेस, फाइनेंशियल सपोर्ट, दैट entirely thing happened at incubation center. ठीक है. So NISP policy में incubation center play key role, right. Then next to that IP ownership rights. आपने सुना होगा बहुत बार, अभी आपने IP में लिया, मेरे को लगता नहीं मैंने ज्यादा बात करना चाहिए, but this policy actually help you out कि आप पे किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया ना, this policy will actually answer that particular thing. अगर मैं इंस्टीट्यूट की फैसिलिटी यूज करता हूं तो ओनरशिप में इंस्टीट्यूट आ गया. If I did that particular activity outside the institute and outside the time, ownership is absolutely with me only, and that is what somewhat telling NISP. At the same time, if I am one of the owner, I am one of the innovator of that particular IPR. So in that case, royalty fee in order to convert into a startup, 4% is the maximum royalty fee. मतलब each and everything clear cut mention किया हुआ है. Right? Nobody can ask you any sort of questions. सिर्फ उस पॉलिसी को फॉलो करना है. Then pedagogical interventions, आपने देखा होगा at SNDT Women's University we are having, at even PV Polytechnic we are having one course, 2 credit course, grassroots innovation and entrepreneurship. ठीक है. So entrepreneurship को मेन स्ट्रीम में, एजुकेशन स्ट्रीम में लाने के लिए NISP पॉलिसी एग्रेसिवली काम कर रही है. ठीक है. तो नेक्स्ट टू दैट परफॉर्मेंस असेसमेंट. मैं अभी बताया 360 डिग्री की बात की थी आपसे, राइट. प्रिंसिपल के ऊपर चले जाओगे. एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको. SPIT का इंक्यूबेशन सेंटर रन करने वाले राव सर है ना, राव सर ही है ना, राव सर का ही था, आइडिया लैब का नहीं, ज्यादा VJTI का प्रोफेसर काजी की बात करूं मैं, प्रोफेसर है,
TBA, VGTA, TBA को रन करते हैं. He got more credentials than the routine directors or routine professor and dean. उनसे ज्यादा credentials हैं, right? So that's the magic of entrepreneurship. That's the magic of this NISP policy. आपके marks automatically even promotions में आने वाले समय पे promotions पे भी उसको ध्यान रखा जाएगा. You just check it out in the 7 pay commissions. जब हम 55 है ना सर, 50 वर्षाच्या पुढे रिव्ह्यू करतो ना पण की 55 50-55 ना. So you will find कि 50 और 50 आणि 50च्या वर रिव्ह्यू करण्याची प्रोसिजर स्टार्ट केली 7 पे ने. So in that case, if you are having such type of ecosystem, आपने वो create किया, if you contribute that particular thing, nobody can stop. Then academic flexibility, ये भी बता दिया, student can take a break, even faculty can go on sabbatical leave. Even sabbatical leave की बात करें from government point of view, थोड़ा difficult situation हो जाता है ना? वो sabbatical leave पे सवाल बहुत सारे आ जाते हैं, प्रिंसिपल भी बहुत सारा जोड़ता है, and the process is too lengthy. आखिरी में वो sabbatical leave छोड़ना है, मुझे कुछ नहीं करना है, ठीक है? But through this NISP policy, through महाराष्ट्र स्टार्टअप पॉलिसी, I must say सिंगल विंडो टाइप का कंसेप्ट है उसमें. आपने से वो बड़ा फैंसी वर्ड है माय डियर फ्रेंड्स, स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप, इंक्यूबेशन, है ना? ये बड़े फैंसी वर्ड्स है किसी को अट्रैक्ट करने के लिए, बट आप उसमें एंटर करोगे तब पेन एक्चुअल समझ में आएगा, राइट? मेरे पास मुंबई यूनिवर्सिटी में बहुत सारे स्टार्टअप आए थे, कॉलेजेस आए थे, सर हमें भी इंक्यूबेशन सेंटर ओपन करना है. भाई 2 साल इंक्यूबेशन सेंटर मैंने रन किया, रुपए लगे 24 लाख रुपए लगे, एंड I don't have any sort of revenue through that particular activity. Private body कर सकेगी क्या? मैं भी इसलिए कर पाया because I got a grant from Maharashtra State Innovation Society. Otherwise I can't do same thing. ठीक है? At University of Mumbai हमने क्या किया, PM उषा में डाल दिया उसको सीधा सीधा. पर पैसा लगेगा बॉस. और जैसे हम बोलते हैं, मेरे फैकल्टी बोलते हैं कि पैसा आने के बाद कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है? और कॉन्फिडेंस बढ़ने के बाद बीइंग अ प्रिंसिपल आपका इमेज भी बन जाता है. Nobody can take you granted, right? So same thing. तो उस एंगल से इनोवेशन फंड एक कंसेप्ट मैंडेटरी डाला गया है. एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं, इक्विटी शेयरिंग ऑलरेडी बोल दिया है. इफ अ पर्टिकुलर स्टार्टअप इज वर्किंग इन योर इंस्टीट्यूट, अगेंस्ट दैट यू हैव टू प्रोवाइड मेंटरशिप, कोवर्किंग स्पेस, लेबोरेटरी एंड ऑल अदर फैसिलिटीज. अगेंस्ट दैट यू कैन चार्ज 2 to 9.5% स्टेक इन दैट पर्टिकुलर कंपनी. 2 से 9.5 तक. एक एग्जांपल देता हूं, सोमैया विद्या विहार, आप चले जाना रीडल बोल के, उस यूनिवर्सिटी के पास फार्म इजी का भी स्टेक है, ध्यान रखना, फार्म इजी का, जो अभी अपकमिंग में आईपीओ लाने जा रही है. अब बताओ मेरे को, उस केस में पैसा आने के बाद कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? 100% बढ़ेगा, राइट? एट द सेम टाइम्स वो रीडल इंक्यूबेशन सेंटर के पास भी स्टेक है, और दोज हु आर एक्चुअली मेंटरिंग, दे आर हैविंग पर्टिकुलर थिंग, क्योंकि आप नेसेंट आइडिया पे काम कर रहे हो. सो उस केस में फंड्स या आपका क्या बोलते हैं उसको, स्टेक आना आसान है. बट एट द सेम टाइम अगर वो फेल भी होती तो डजंट मैटर यार, क्या फर्क पड़ रहा है? इन योर क्रेडेंशियल, इन योर बायोडाटा यू कैन राइट. इवन फेलियर स्टार्टअप को मैं ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि उसका इंटेंशन तो ध्यान में आ गया, क्लैरिटी है कि वो वही करने वाला है, ठीक है? सो आईपीआर ओनरशिप ऑलरेडी टोल्ड. सर्विस मॉडल्स की बात करें तो सर्विस मॉडल का एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं. आई मस्ट से इंक्लूडिंग प्रिंसिपल कैबिन एट पीवी पॉलिटेक्निक, नन ऑफ द प्लेस इज 100% यूटिलाइज्ड. आपके भी इंस्टीट्यूट में देख लीजिए, आपके इंस्टीट्यूट में हो सकता है, मैं ऐसे सोचता हूं कि आपके इसमें हो सकता है, मेरे इंस्टीट्यूट में पक्का नहीं है. 24/7 सैटरडे संडे छुट्टी है, राइट? उसके बाद प्रिंसिपल यहां आया है तो उधर खाली है. ऑडिटोरियम की बात करें, ये ऑडिटोरियम कितना ऑक्युपाइड है. सो दैट इज द थिंग वेयर इफ यू आर रेंटेड आउट दैट पर्टिकुलर प्लेस टू द स्टार्टअप, दिस पॉलिसी अलाउज यू, ठीक है? एंड अगेंस्ट दैट यू चार्ज बेयर मिनिमम अमाउंट. कम से कम यार लाइट का खर्चा तो निकल जाएगा, राइट? एट द सेम टाइम जो आवाज अभी घूम रहा है, इससे कम आवाज में काम होगा, राइट? सो दैट कम्स अंडर द NISP पॉलिसी. मतलब अब रेंट पे भी देना बहुत आसान है प्लेस आपकी. दैट पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी की अगर हम बात करते हैं, जनरल चीज है पॉलिसी फॉर्मुलेशंस. जैसे हमारी बात करें एट SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी, वी हैव टू चेक आउट महाराष्ट्र स्टार्टअप पॉलिसी एज वेल एज NISP, नेशनल यूनिवर्सिटी स्टार्टअप पॉलिसी. इन दोनों को क्लब करते हुए वी कम अप विद फ्रेमिंग ऑफ आवर ओन पॉलिसी. जैसे सोलापुर यूनिवर्सिटी में हमने स्टार्टअप पॉलिसी फॉर फैकल्टी बनाई थी. एट सोलापुर यूनिवर्सिटी नोबडी कैन स्टॉप्स, वो मैंने बड़ा क्लियर किया था.
वो जो दो स्टाफ का पोर्शन था, एट द सेम टाइम सेम थिंग इज हैपेंड एट यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई टू, और यहां पर भी वो पॉलिसी अंडर प्रोसेस है, राइट? इफ यू कम्स अंडर दैट पर्टिकुलर, इवन मेरे हिसाब से एमएसबीटी ने भी की है सर, एमएसबीटी मतलब दोज हु कम्स अंडर एमएसबीटी कैन स्टार्ट देयर ओन स्टार्टअप, कोई भी स्टॉप नहीं कर पाएगा, राइट? देन कैपेसिटी बिल्डिंग तो बोल चुका हूं मैं ऑलरेडी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं, यू नो, through if your institute is technical institute, if your institute is management institute, please apply for MSME host institute type of things where आइडिया को 15 लाख तक का ग्रांट मिलेगा, एक आइडिया को 15 लाख तक का ग्रांट, दो आइडिया अगर सिलेक्ट होती है तो इन दैट केस योर इंस्टीट्यूट विल गेट 1 CR ग्रांट, ठीक है? So that sort of, even CSR grant की अगर हम बात करते हैं, lots of CSR are there who actually help you out for establishing startup ecosystem. Best one is HDFC Bank. HDFC परिवर्तन के थ्रू लाती है, SBI बैंक म्यूचुअल फंड के थ्रू लाती है, and so on. Then monitoring and evaluation, भी पॉलिसी बराबर बनी है नहीं बनी, इंप्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ, that is the strategy. इम्पैक्ट की अगर हम बात करते हैं तो इनोवेशन कल्चर्स, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, स्टार्टअप ग्रोथ की भी बात करोगे, इकोसिस्टम में आप कंट्रीब्यूट करोगे, इंडस्ट्री कोलैबोरेशंस की बात करूं, जब इंडस्ट्री के प्रॉब्लम पे मैं काम करूंगा, जैसे हमारे फूड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, हम उनके प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं, तो वो देख ही नहीं रहे कि ओवरसीज डिप्लोमा इंस्टीट्यूट और डिग्री इंस्टीट्यूट, दे आर कमिंग। आई होप लास्ट ईयर 5 लाख का एक बड़ा प्रोजेक्ट आया था ना आपके पास, है ना? तो टोटल 1 ईयर का रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ था आपका? 10 लाख, राइट? सो दैट इज द थिंग। अगर आप उस वे से वर्कआउट करें, मेरे पास तो स्टूडेंट है, मेरा बीओ कोर्स चलता है, ठीक है? बीओ में इंडस्ट्री में वैसे भी भेजना पड़ता है, तो उन्हीं के प्रॉब्लम पे हम काम करते हैं और पैसा भी कमाते हैं। हम मतलब इंस्टीट्यूट, जहां हम की बात आए तो पीवी पॉलिटेक्निक समझना। देन स्किल डेवलपमेंट वही बात आई है कि एज ऑफ नाउ इफ यू से, आपने देखा होगा जितना भी मैं लेक्चर अभी तक डिलीवर किया, इट्स अ गुड स्टोरी टेलिंग टाइप ऑफ थिंग्स, है ना? बिल्कुल ऐसे स्टोरी टेलिंग करते 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 मैं मेरे थॉट पे जा रहा हूं, राइट? सो आपके बच्चों में, यू नो, चिल्लाने से मिट्टी बिकती है, नहीं चिल्लाने से सोना नहीं बिकता, ये आपने देखा है। गांव में मिट्टी ऐसे ही पड़ी रहती है, और यहां आप अगर नर्सरी में जाओ तो किलो से बिकती है, राइट? सो वी शुड ट्रेन अवर स्टूडेंट लाइक दैट ओनली। जैसे हम बोलते हैं, आई ऑलवेज यूज्ड टू से इन माय स्टार्टअप मंथन प्रोग्राम, आई ऑलवेज यूज्ड टू से कि एक काम करो, वंस अपॉन इन अ टाइम, मुंबई का एक मूवी का एक डायलॉग है अजय देवगन का, अमरूद वाला, बताओ इसका कितना, ये समझो ऐसा ऐसा करते करते 1 रुपए का अमरूद तो 1000 रुपए 10,000 तक की बात की थी, राइट? अनलेस एंड अनटिल इफ यू आर नॉट टेलिंग योर प्रोडक्ट इज 5 स्टार, नोबडी कैन टेल। जरूरत क्या है, कोई नहीं बोलेगा, तो आपको बताना होगा। सो दैट सॉर्ट ऑफ इकोसिस्टम कैन बी एस्टैब्लिश्ड। मेरे को लगता है आने वाले समय पे थ्रू एनआईएसपी पॉलिसी वो इकोसिस्टम डेवलप होगा। अभी आपने देखा होगा कि बातों बातों में मैंने पॉलिटेक्निक की पब्लिसिटी भी कर दी, आपके ध्यान में आया होगा, तो ठीक है। सो दैट शुड बी, मैं जब तक बोलूंगा नहीं तब तक आप जानोगे क्या। वो जो फिगर उन्होंने 10 लाख की बताई वो मुझे मालूम नहीं रहेगी, ऐसा हो सकता है क्या? बीइंग अ प्रिंसिपल 100% मालूम होगा, बट उसके मुंह से सुनने के बाद क्या होगा, आपके दिमाग में जल्दी घुस जाएगा, राइट? सो इट्स ऑल अबाउट मनी माय डियर हनी, राइट? सो चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज की अगर हम बात करते हैं तो लिमिटेड अवेयरनेस, एब्सोल्युटली, कि आई एम सो हैप्पी, थैंक्स टू विनोद यादव सर। विश्वास करो, मैं एडवाइजरी कमेटी पे भले ही हो, इस प्रोग्राम में मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है, ठीक है? सिर्फ वो प्रिंसिपल का पोस्ट फिल करने का काम किया। एंटायर शेड्यूलिंग, एंटायर प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर और प्रोग्राम डायरेक्टर गिरफ सर और विनोद सर किए। आई वाज सो हैप्पी जब उन्होंने एनआईएसपी पॉलिसी डाली थी। मैंने इनिशियल स्टेज पे नहीं बोला, वो दिखावा था एक्चुअली, बिकॉज एनआईएसपी इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, राइट? जब उन्होंने, हाँ ठीक है आप बोल रहे हो तो मैं ले लेता हूं, आप बोल रहे हो बोल के नहीं, मेरे को लेना ही था, राइट? सो रिसोर्स कंस्ट्रेंट इन इंप्लीमेंटिंग इंक्यूबेशन फैसिलिटीज। आज तक हमारा माइंडसेट जो है ना, बॉक्स के बाहर सोच ही नहीं रहा है, और सोचना पड़ने वाला है। हम नहीं सोचेंगे तो सोचने लगाया जाएगा। तो आप देख लो, मुझे तो लगता है कि कोई मेरे आंख पे आ जाए तो अभी आ गया, मैं चिंता नहीं है, तो वो पीठ पे तो बिल्कुल हाथ दे देगा ना, नहीं यार होशियार आदमी है बोलते। अब वो होशियार है या क्या है वो बात की बात है, दैट्स डिफरेंट स्टोरी। नीड फॉर कंटिन्यूअस मेंटरशिप एंड सपोर्ट, यस, इस टाइप के लेक्चर्स अलग अलग जगह पे होने चाहिए। सो दैट इज समवॉट द चैलेंज। अपॉर्चुनिटीज की बात, ह्यूज अपॉर्चुनिटीज है, ये से भी अनलिस्ट किया है। आई मस्ट से, विश्वास करो मेरे पे, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट ह्यूज मिलने वाला है आपको थ्रू दिस एनआईएसपी पॉलिसी।
और नॉन मॉनिटरी को मॉनिटरी में कैसे कन्वर्ट करना है, इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूं मैं कि मैं सोलापुर यूनिवर्सिटी गया था, 2 साल के लिए काम किया और 2 साल के काम की वजह से यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में पॉलिटेक्निक का बंदा नॉन यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, सो आई मस्ट से कि एनआईएसपी मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं बोल के नहीं, यू थिंक और देन फिर आगे बात करेंगे अपन, ठीक है। सो समरी एट ए ग्लांस, यस ये तो बता चुका हूं मैं, मुझे लगता है मैंने यहां रुक जाना चाहिए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस, अगर सॉल्व है तो देन लेट्स कोलैबोरेट फॉर विकसित भारत। अब ये आप सोच सकते हो कि ये डायलॉग है, नो नॉट एट ऑल, बिकॉज विकसित भारत में मैं खुद भी इन्वॉल्व हूं, मैं खुद भी बेनिफिशियरी हूं। अब भारत विकसित होगा तो डॉलर का रेट कम हो जाएगा, तो डॉलर का रेट कम होगा तो मेरा भी वैल्यू बढ़ेगा, इट लुक्स लाइक टू दैट, राइट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। मेरे पास आंसर होगा तो मैं दे दूंगा, नहीं होगा तो सॉरी बोल दूंगा, आई डोंट माइंड, राइट। सो थैंक यू सो मच। So at one hand, we are encouraging students for the startups and for some innovation ideas and those things. So when they come up with some innovative ideas, so obviously some innovative work has to be protected. So at other side, when we say this IPR and patent, so that process is so complicated, like in terms of paying fee for that or this thing. So how we are going to cope with such challenges as far as students are concerned? देखो पर्सनली अगर आप मुझे पूछोगे कि एज ए फैकल्टी, जैसे मैंने बोला था मेरे पास 10 पेटेंट है, सिर्फ एकेडमिक पेटेंट है, मेरा बायोडाटा स्ट्रॉन्ग किया और कुछ नहीं किया है, राइट। सो आई मस्ट से, मुझे आपको बताना अच्छा लगेगा, यू जस्ट और मेरे पे विश्वास भी करो, राइट। अब हमें बीइंग अ फैकल्टी माइंड से थोड़ा सा ब्रॉडर करना पड़ेगा। पेटेंट आ गया तो क्रेडेंशियल तो बन गया, बट एट द सेम टाइम मैं उन्हीं चीजों को पेटेंट करूंगा जिसकी कमर्शियल वैल्यू हो। और अब कमर्शियल वैल्यूज कहां से फाइंड आउट करूंगा, मैं उसी चीजों में रिसर्च करूंगा जो रियल टाइम या रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को एड्रेस करेगा, ठीक है, अभी के प्रॉब्लम्स को। एक एग्जांपल देता हूं ओयो होटल का। आज ओयो होटल क्या है आप अच्छे से जानते हो, एक अकेला कंपनी जो टॉप या टॉप का होटल इंडस्ट्री में टॉप का प्लेयर था, और कब था मालूम है आपको, जब उसके पास कोई होटल नहीं था। हो सकता है बॉस, 100%। उसने एड्रेस क्या किया, उसने एड्रेस सिंपल किया, एक कस्टमर वाला जो एक्सपेक्टेशंस चीप होटल वाला उसको एड्रेस किया, और दूसरा एड्रेस किसको किया, होटल का ऑक्यूपेंसी बढ़ाना। अगर ऑक्यूपेंसी बढ़ाना है तो उससे डिस्काउंट मांगा, वही डिस्काउंट इधर कैरी फॉरवर्ड कर दिया। अब अगर मैं आपको 100 रुपए बचाए तो 2 रुपए दोगे नहीं क्या आप मेरे को, 100 हंसते हुए दे दोगे, राइट। सो उस एंगल से अगर हम बात करते हैं तो आप पेटेंट करो, फाइलिंग पेटेंट करने के बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपका सेव हो गया, और एट द सेम टाइम गेट इट कन्वर्टेड इनटू टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और योर ओन स्टार्टअप थ्रू स्टूडेंट और थ्रू एनीबडी एल्स। देखो एक स्टार्टअप में आपका जिसको हम बोलते हैं ट्रू वर्किंग पर्सन होता है, ठीक है, और दूसरा जो आपका क्या बोलते हैं उसको, सीक्रेट नहीं बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, एक ऐसा पर्सन जिसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिवाय पैसे देने का, सिवाय टेक्नोलॉजी का और कुछ नहीं है। वो सिर्फ दूर से वो ऑब्जर्व करता है कि कंपनी रन होनी चाहिए, राइट। और कुछ ऐसे भी बंदे रहेंगे उसको और बेटर करना चाहते हैं। प्रोटेक्ट भी करो, प्रोटेक्ट कॉम्प्लिकेटेड आप जो वर्ड यूज कर रहे हो, विश्वास करो प्रोटेक्ट कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड कब होती है, हम उन क्लेम के बारे में बात करते हैं जो लॉजिकली करेक्ट नहीं है, ठीक है, हम छोड़ते भी नहीं है उसको पकड़ के रखते हैं, तो फिर क्या हो जाता है, इट लुक्स लाइक टू दैट ऑफ टेबल टेनिस गेम। मैंने एक सवाल पूछा और आपने जवाब दे दिया, फिर उसमें और सवाल बना, तो फिर वो प्रोसेस लंबी हो गई। तो बी स्पेसिफिक एज पर एज क्लेम इज कंसर्न। आपका क्लेम बड़ा क्लियर होना चाहिए कि बॉस ये क्लेम को मैं पेटेंट करना चाहता हूं, तो देन आप देखो कि वो पेटेंट फटाफट अप्रूव हो जाएगा। इतना कॉम्प्लिकेटेड 100% नहीं होगा, राइट। एनीथिंग एल्स? अच्छा लगा मेरे को, इट लुक्स लाइक टू दैट ऑफ आसाराम बापू, अच्छा प्रवचन दिया है। आई होप मैं उस कैटेगरी में नहीं हूं। मैं इस होप्स के साथ ये सेशन कंक्लूड करता हूं कि आप में कहीं तो भी एक में स्पार्क एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड क्रिएट करने का काम किया, ठीक है। फॉरगेट अबाउट माय डेजिग्नेशन की तरफ मत चाहिए। यू मे कंसिडर
एज यूर स्टार्टअप मित्रा, जिसके पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 4-6 जनों के सामने पूछना मेरे को थोड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज हम लोग क्या बोलते हैं उसको, कॉशियस, क्या इमेज कॉशियस, ठीक है, उस कैटेगरी में जाते हैं. यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस एनी टाइम थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू ईमेल और थ्रू इवन कप ऑफ टी, बिकॉज आप भी तो कलीग हो मेरे, है ना. सो आप मेरे पास वैसे भी आओगे तो एक आधा कप तो चाय बनता है सर, बराबर ना सर, तो वो तो चाय बन ही जाएगा, है ना. सो विद दैट नोट, प्लीज 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 आपके बच्चों को अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने दो, प्लीज उन पे हंसो मत, राइट. दो ही चीजें हो सकती है आइडिया वैलिडेशन में, एक या तो वो आपको आइडिया समझी है, नहीं तो आपको आइडिया नहीं समझी है, बट वो आइडिया गलत है, ये नहीं हो सकता है, राइट. उसका एक एग्जांपल देता हूं. मैं अगर आपको बोलूं कि मेरे पास एक आइडिया है, क्या आइडिया पता है आपको, कि मैं ऐसी टेक्नोलॉजी बनाना चाहता हूं जो मंगल ग्रह पे टोमेटो उगा सके, है ना. हंस दिए 2-3 जनों ने, तो हंस दिए, है ना. माय डियर फ्रेंड्स, आई मस्ट से उस पर्टिकुलर आइडिया पे इलॉन मस्क ने फंडिंग की है. अब आप बोलोगे या तो पागल होगा नहीं तो होशियार होगा, ठीक है. पक्का स्टार्टअप इको पॉइंट ऑफ व्यू मैं उसको बेवकूफ नहीं समझूंगा, वो टैलेंटेड है. उसने क्या किया, 2 काम किया, कम पैसे में उस आइडिया पे काम करने वाला रेडीमेड बंदा मिल गया उसको, और एट द सेम टाइम वो अगर फेल भी हो जाता है तो पर्सन का वैलिडिटी कि वो सच में पागल है क्या, वो सच में स्टार्टअप करने वाला है क्या, तो उसके नेक्स्ट आइडिया के लिए वो फंड करने के लिए प्लेटफॉर्म रेडी रख दिया, ठीक है. इन स्टार्टअप इकोसिस्टम, इंक्यूबेशन इकोसिस्टम, कोई अगर आपको ज्ञान दे रहा है कि मैं आपको हेल्प करता हूं आपका स्टार्टअप बड़ा करने के लिए, कोई फिलोसॉफी नहीं है, कोई फिलैंथ्रोपिक नहीं है. ईच एंड एवरी पर्सन हु आर देयर इन द इंक्यूबेशन डोमेन, स्टार्टअप इकोसिस्टम, उनको मिलने वाला है, पक्का मिलने वाला है, ठीक है. तो ये जैसे वो आपने देखा होगा आनंद महिंद्रा वगैरह एक आधे ग्रास रूट इनोवेशंस को तारीफ करते हैं, वाओ व्हाट अ ग्रेट आइडिया, आई विल मोर देन हैप्पी टू फंड. एंड फंड वन नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है. देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस फंड और इन्वेस्टमेंट में. इवन CSR भी 3.5 साल में ये भी सीखा मैंने, CSR कोई फंडा नहीं होता है, कारपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी बोलते हैं ना, तो CSR इज एक्चुअली इन्वेस्टमेंट, माय डियर फ्रेंड्स, एक्सेप्ट टाटा, राइट. कोई और प्लेटफॉर्म पे वो स्टोरी भी बताऊंगा जहां पर CSR कैसे इन्वेस्टमेंट है, किस वे से सोशल एंटरप्रेन्योर मार्केट में आ रहे हैं थ्रू CSR, राइट. एक जाते जाते एग्जांपल दे देता हूं कि क्यों रिलायंस अपनी यूनिवर्सिटी ओपन की, क्यों बिरला ग्रुप ने बिट्स पिलानी ओपन किया, क्यों विप्रो ने अजीज प्रेमजी यूनिवर्सिटी ओपन की, क्यों शिव नादर ने और एक यूनिवर्सिटी ओपन की, एंड सो ऑन.